أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور سننے والے عوام اور فریق مخالف اسٹیج کے اوپر بیٹھے علماء کرام اور عوام، آج کا یہ جو مناظرہ رکھا گیا ہے، مناظرے کا مقصد ہوتا ہے احقاق حق اور ابطال باطل، یعنی حق کو ثابت کرنا اور جو غلط ہے اسے غلط ثابت کرنا، جو بات صحیح ہے اسے صحیح ثابت کرنا اور جو غلط ہے اسے غلط ثابت کرنا، یہ مناظرے کا مقصد ہوتا ہے۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، دیوبندیوں اور بریلویوں کا جھگڑا کوئی نیا نہیں، بہت پرانا ہے، اور اس جھگڑے سے عوام اور خواص سب واقف ہیں۔ تو آج یہ جو ہمارا جھگڑا یعنی مناظرہ ہو رہا ہے، تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اولاً دونوں حضرات جو مناظرین ہیں وہ موضوع مناظرہ، شرائط مناظرہ، دعوی مناظرہ، ان چیزوں کو طے کر لیں۔ آپ حضرات کو شاید یہ بات معلوم ہوگی اور ہمارے ساتھیوں کی طرف سے آپ حضرات کو یہ مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد اطلاع بھی کروائی گئی ہوگی۔ ہم نے کہا تھا کہ جو مناظرین حضرات ہیں دونوں طرف کے دو یا تین آدمی تنہائی کے اندر بیٹھ جائیں اور شرائط مناظرہ اور دعویٰ وغیرہ کی جو تنقیحات ہیں اسے مکمل کریں، تاکہ عشاء کے بعد کے شرائط دعوے وغیرہ کے اندر کوئی الجھاؤ نہ رہے اور ڈائریکٹ بات گفتگو شروع ہو جائے۔ لیکن پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت آپ حضرات نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور شرائط دعوے کی تنقید، دعوے کی ساری جزئیات اور کلیات جو ہیں وہ آپ نے عوام کے بیچ میں ہی بات کرنے کی کوشش کی۔ خیر، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں فریق مخالف مناظر سے کہوں گا اپنے مد مقابل سے کہ وہ پہلے عنوان اور شرائط اور دعویٰ، ان تمام چیزوں کی تنقید پیش کریں۔ پہلے دعویٰ پیش کریں، اس کے بعد شرائط ہوں گی اور اس کے بعد شرائط کے اوپر گفتگو ہوگی۔ شرائط، یہ جو پرچہ پڑھا گیا ہے، ہم تو ابھی آئے ہیں، آپ کے گاؤں میں کیا بات ہوئی ہے اور کیا جھگڑے ہوئے ہیں، کس موضوع کو نکالا گیا ہے اور کسے رکھا گیا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم یہاں آج حق اور باطل کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں، حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب پہلے کتنی مرتبہ آپ کے گاؤں میں جھگڑا ہوا، پہلے کتنی مرتبہ آپ کے گاؤں میں لڑائی ہوئی ہے اور کتنے موضوعوں کو نکالا گیا ہے۔ پیچھے بات کو چھوڑا یار، بند کرو ان کو۔ تو بھائی کیا ہو رہا ہے؟ یہ 15 آدمی ہے کہ 40 آدمی بیٹھے ہیں؟ تو پھر یار 15 آدمی طے ہو گئے، پھر کیوں غلطی کر رہے ہو آپ لوگ؟ ایک منٹ تشریف رکھیں، یا آدمی دونوں طرف کے برابر ہوں گے، اگر ادھر 10 ہیں تو ادھر بھی 10 ہوں گے۔ ہمارے آدمی ملتے ہیں، اتنے آدمی آپ بٹھائیں، اس سے زیادہ ایک بھی آدمی زیادہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جو اصل نہیں ہے، جو جڑ نہیں ہے، تو اس کے اوپر گفتگو ہونے کے بعد پھر بات باقی رہ جائے گی کہ اس کے اوپر تو ہمارا اصل اختلاف تھا ہی نہیں، اصل اختلاف تو ہمارا اس کے اوپر ہے، اس مسئلے کے اوپر ہے۔ اس لیے میں فریق مخالف اپنے مناظر سے یہی کہوں گا کہ وہ اپنی بات کی تنقید کریں، موضوع اور شرائط وغیرہ کی وضاحت کریں، اس کے بعد آگے بات شروع ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں مناظرے کی شرائط وہ بھی طے ہو چکے ہیں، پوری بستی نے مناظرے کے شرائط طے کر لیے ہیں، بات طے ہو چکی ہے۔ ہم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مولوی نے اپنی فتویٰ میں لکھا ہے کہ امام حسین کا شربت حرام ہے، حرام ہے۔ یہ موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ہماری کتاب میں نہیں مل سکتا، اگر یہ ہماری کتاب میں مل گیا تو ہم توبہ کریں گے، اور ہمارے علماء صرف اس لیے آئیں گے کہ وہ ہمیں اپنی کتاب میں دکھا دے کہ یہ ہماری کتاب میں ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب میں بات نہیں ہے، تم نے ہماری کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ مناظرہ صرف اتنی بات پر ہے آج کہ ہم ثابت کریں گے کہ
कि इन्होंने इसी फतवा रशीदिया में होली दिवाली की पूरी कचौरी को जायज लिखा है। हिंदू जो सूद का पैसा लेकर और ब्याज का पैसा लगाकर हिंदू जो ब्याज लगाते हैं उससे पानी पीना जायज है, और जो मुसलमान अपनी हलाल कमाई से दूध और शरबत पिलाकर मोहर्रम में इमाम शरकत वो हराम है। लिहाजा ये जिंदगी भर हम दिखाना तैयार हैं, ये किताब नहीं, ये इनकी किताब है। अगर न हो तो जो सजा चोर की वो हमारी, अगर है तो पहले ये जो आदमी जो यहाँ गांव के हैं उन्होंने कहा अगर हमारी किताबों में ये बात मिल गई तो हम तौबा करेंगे, वो तौबा करें, मैं किताब दिखाऊं। सिर्फ मुनाजरा आज इस बात का, ये पूरी बस्ती बैठी हुई, पूरी बस्ती सिर्फ मुनाजरा रहा। दस्तूर कोई मौजू होगा क्या होगा वो बात की बातें हैं। आज सिर्फ मुनाजरा इस बात पर है कि हमने जो कहा, इन्होंने कहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मिल गए, वो मैं इनकी किताब में दिखाऊंगा। इन्होंने कहा है हुजूर का इल्म पागलों जैसा है, वो मैं इनकी किताब में दिखाऊंगा। तो इन्होंने गुस्ताखियां जो की है सिर्फ मुनाजरा इस बात पर है, इसके अलावा ये मिलान कर सकते हैं और कुछ नहीं। अगर इनकी किताब में नहीं है तो जो सजा चोर क्यों हमारी, और अगर है तो पहले वो तौबा करें। यहाँ के लोग इतनी बात पर मुनाजरा हुआ है और ये पर्चा दस्तखत सबके यहाँ की पूरी बस्ती के मौजूद है। लिहाजा इससे आगे बात ना बढ़ाई जाए। जो बातें हैं हमने जो कहा है, अगर यहाँ हमने जो कहा फतवा रशीदिया की किताब न हो और इसमें लिखा है जिस मीलाद में सही रिवायत पढ़ी जाती हो और कोई खराबी ना हो वो मीलाद भी जायज नहीं है। इसमें साफ लिखा है कोई सा उर्स हो कुरान खानी वो जायज नहीं है। ये हमारे पास इनके सबसे बड़े मौलवी की किताब जिसको मानते हैं फतवा रशीदिया, नोट कर लें, देख लें, दिखाने का जिम्मेदार मैं। और ये सारे हजरात बैठे हैं, इन्होंने कहा है कि मुनाजरा सिर्फ इस बात पर होगा, कोई मौजू नहीं। अगर ये बातें हमारी किताब में मिली तो हम तौबा करेंगे। आज मैं दिखाने के लिए आया हूँ, आप तौबा कीजिए, इसके अलावा दूसरी कोई बात यहाँ नहीं चलेगी। ये शराइत का पर्चा जो हमारे हाथ में दिया गया है, इस शराइत के पर्चे के ऊपर हमारी तरफ से न किसी आलिम के दस्तखत है न आवाम में किसी के दस्तखत है। ये शराइत का पर्चा एक तरफा आपके लोगों ने बैठ के तय किया है, और शराइत एक तरफा तय नहीं होती, दोनों फरीक की रजामंदी से तय होती है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मौजू ये है कि फतवा रशीदिया के अंदर लिखा है मुहर्रम का शरबत, और ये मौजू है शरबत पीना, होली दिवाली की मिठाई। आपकी इस बात की तकसीर, आपका ये शराइत का पर्चा जो आप ही लोगों ने तय किया है, हमारे दस्तखत नहीं, आपका ये शराइत का पर्चा इस बात की तकसीर कर रहा है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ होली दिवाली की मिठाई और मुहर्रम के शरबत पे मुनाजरा, इसके अलावा कोई मौजू नहीं। इस पर्चे में होली दिवाली और शरबत और मिठाई का कोई तस्करा है ही नहीं, ना फतवा रशीदिया का कोई तस्करा है। इस पर्चे के अंदर तो आपने मौजू कुछ और लिखा है, आपने अपने पर्चे में जो मौजू लिखा आप अब उसे भी बदल रहे हैं। आपकी जबान कुछ कह रही है और आपकी जो तहरीर है वो कुछ कह रही है। आप कह रहे हैं मैं ये दिखाऊंगा कि फलां किताब में ये गुस्ताखी की गई, फलां किताब में ये गुस्ताखी की गई। मैं कहता हूँ हम आए इसीलिए हैं कि ताकि दिखाया जाए, और आज सब लोग देख सकते हैं कि दिखाने के लिए किताबें आप ज्यादा लेके आए या हम ज्यादा लेके आए। हमारे पास भी आपकी फतवा रशीदिया मौजूद है, नई भी मौजूद है, पुरानी भी मौजूद है। हम आज लोगों को दिखाएंगे। आपने गुस्ताखियों के इल्जाम उलमाए देवबंद पे लगाए, लेकिन हम दिखाएंगे अहमद रजा खान ने फतवा रशीदिया में कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हैं। हमारे पास में मुफ्ती अहमद यार नईमी की किताबें भी मौजूद हैं। बोलना दो, उसको बोलना दो, 10-10 मिनट का टाइम दो, आप बोलना दो, आप पहले सुन लो। हमारे पास मुफ्ती अहमद यार नईमी की फतवा नईमिया, ये तफसीर नईमी भी मौजूद है और नूरुल इरफान भी मौजूद है। हम इसमें दिखाएंगे कि नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने कुत्तों से तशबीह दी है। गुस्ताखियां तो हम ऐसी दिखाएंगे कि खुदा की कसम पब्लिक तौबा करेंगे, आज कैसी गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं। हम सिर्फ इसलिए खामोश थे कि उम्मत के अंदर ना इत्तिफाकी ना हो, झगड़े ना हो, लेकिन हमारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया कि इनके पास कोई दलील ही नहीं। एक तरफा हर बयान में, हर तकरीर में उलमाए देवबंद को गालियां, उलमाए देवबंद को फतवे। मैं यही कह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब आज आप उसूल और शराइत के मुताबिक गुफ्तगू करें। उलमाए देवबंद को अगर आप काफिर कहते हैं तो दावा लिख के दें, पहले आपका दावा क्या है, उसके बाद शराइत तय होगी, उसके बाद गुफ्तगू होगी। ये छोटी सी हलवे मिठाई की बात में मुनाजरा नहीं हो, हम इतनी दूर
से इतनी किताबें सिर्फ हलवा मिठाई की बात साबित करने के लिए नहीं लाए हैं। टाइम आपकी घड़ी में हुआ है, हमारी घड़ी में नहीं हुआ है। अभी रुक जाओ आप। हमारी घड़ी में नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है, आप कह रहे हैं मैं ये दिखाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी इधर बाईं तरफ किताबें रखी हैं, कैमरा जरा इधर करें, ये बाईं तरफ जितनी किताबें रखी हैं ये सारी किताबें उलमाए बरेलवियों की हैं। सारी किताबें उलमाए बरेलवियों की जितनी हैं, और इन किताबों के अंदर इंशाअल्लाह हम ये भी दिखाएंगे कि अहमद रजा खान ने नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बाजारी और तवाइफा औरत कहा है। बाजारी औरत, ये गुस्ताखी नहीं, ये फतावा रिजविया रखी है। इस फतावा रिजविया के अंदर अहमद रजा खान ने नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को हिजड़ा कहा है। बताओ इससे बड़ी क्या गुस्ताखी होगी। हम आज तक खामोश हैं, इसलिए मैं मुफ्ती साहब से यही कहूँगा कि मौजू तय करें, उसके बाद तफसील से गुफ्तगू होगी। आप दलाइल दें जितने, वैसे तो पता चल रहा है आपके पास 4 किताबें रखी हैं, आप क्या दलाइल देंगे हमें? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास किताबों का अंबार है, आप 4 किताबों से क्या दलाइल देंगे? आप मौजू लिखें, उसके बाद 2 मिनट और है, 2 मिनट और है, बैठ जाओ मुफ्ती साहब। उसके बाद आप जो है आराम से गुफ्तगू करना, इंशाअल्लाह तसल्ली से गुफ्तगू होगी। हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, तसल्ली से गुफ्तगू करने के लिए आए हैं, बात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आए हैं। और इंशाअल्लाह आज ये शहर, ये बस्ती और ये गांव आज इस बात का गवाह होगा कि वो लोग जो दूसरों को गुस्ताख कहते थे, जब साबित करने का नंबर आया तो खुद सबसे बड़े गुस्ताख हुए। आज इंशाअल्लाह ये गांव इस बात का गवाह बनेगा। हम किताबें लेके आए, मैं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब से बार बार, मुफ्ती साहब मौजू लिखें। आप कहते हैं उलमाए देवबंद काफी रहे, हमें दावा लिख के दें। ये शराइत का पर्चा हमारी तरफ से किसी के भी इसके ऊपर दस्तखत नहीं है। आप 4 आदमियों ने अपनी तरफ से कुछ भी शर्तें लिख दी और हमें कह रहे हैं हमारी शर्तें मानो। किसने कब क्या कहा था बस्ती के अंदर और किससे क्या बात हुई थी, हम उसे नहीं जानते। हम तो ये जानते हैं अभी आप और मैं, हम यहाँ मौजूद हैं, आप और हम दोनों मिलकर शर्तें लिखें, उलमाए किराम मौजूद हैं। आवाम की बातों का कोई एतबार नहीं, आवाम में किसने कब क्या कह दिया और किसने कब किसे क्या बोल दिया, कोई एतबार नहीं। सिर्फ उलमा की बात का एतबार होगा तो इस वक्त मुनाज़रीन तय करेंगे। देखिए इतनी किस बयान है, इनको नहीं मालूम है तो आए क्यों? अगर आवाम की बात का एतबार नहीं है, न मेरे दस्तखत हैं न इनके दस्तखत हैं। फैसला आवाम ने किया है, मैं भी आवाम को बुला नहीं पाया हूँ, ये भी आवाम को बुला नहीं पाया। अगर आवाम पर इनको एतबार नहीं है तो आए क्यों यहाँ? दूसरी बात है शराइत आवाम ने तय की है। आवाम ने ये तय की है कि आप ये दिखा दो, आज की तारीख में ये पर्चा मौजूद है, जो नहीं आएगा उसकी हार मानी जाएगी। दूसरी बात, अहले सुन्नत वल जमात पर सिर्फ इतना है कि हम इनकी किताब में दिखाएं, इन्होंने लिखा है हुजूर के ख्याल से नमाज टूट जाएगी, हुजूर के ख्याल में नमाज आ जाए तो बैल और गधे से बदतर है। इन्होंने साफ लिखा है हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए। इन्होंने लिखा है नबी को बड़े भाई की तरह, ये किताब मौजूद है। और इन्होंने इमाम हुसैन की शरबत को हराम लिखा है और होली दिवाली पूरी कचौरी जायज लिखा है। इन्होंने ये मौजूद है, इनके वो मौजूद है। उन्होंने कहा अगर ये किताब मिल जाए हम उस पर लानत भेजेंगे और उसको तौबा करेंगे। बात इनकी है, अवाम की है, ये पर्चा मौजूद है। और जो इसको झुटलाता है आगे शराइत, ये याद रखें, न खंदर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 8 रबीउल सानी 1433 मुनाजिर, ये चैलेंज इन्होंने दिया सुजानगढ़ के अंदर। सैयद ज़हूर अली साहब ने चैलेंज कबूल किया, बासनी से, इसाकिया से और मेवात से मैं आया, सारी चीज साबित की। ये अपने घर को छोड़ के भाग गए, पूरा सुजानगढ़ गवाह। ईदगाह के अंदर हजारों की मौजूदगी में असला नहीं होगा। जो चीज एक सच्चाई पूरा सुजानगढ़ गवाह है। जुमे के बाद फिर हमने अपना दावा ईदगाह के अंदर पेश किया, पूरी किताबें दिखाई, आज सारा सुजानगढ़ गवाह। दावा ये करने वाले चैलेंज, आज भी चैलेंज इन्होंने दिया, यहां के वक्त कबूल हमने किया। और इन्होंने कहा सिर्फ और हमने मुनाजरा नहीं कराना है, हम तो अपने उलमा को इसलिए बुला रहे हैं कि वो हमारी किताबों में बता दे ये हमारी किताब है। अगर ये चीज है तो हम उस मजहब पर से लानत करेंगे, तौबा करेंगे। जो मैंने कहा है मैं आज भी किताबों में दिखाने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा कोई बात छेड़ी तो ये मुनाजरे के खिलाफ होगा। बाकी कोई मुनाजरा होगा
तो उसके लिए चैलेंज हमने कल भी मंजूर था, आज भी मंजूर है, जब चाहे जिस मैदान में आ जाए। लेकिन आज जिस बात पर तय हुआ है, ये पूरी बस्ती गवाह है, सिर्फ इस बात पर है कि हम इनकी ये गुस्ताखी दिखाएं कि इन्होंने पाकीज़ा शरबत को हराम लिखा। अब अगर जिंदगी में अगर बात सही है तो दिखाएं कुरान हदीस से कि पाकीज़ा कमाई हराम, और हिंदू जो प्याव लगाते हैं सूदी पैसा से वो जायज, उसके साथ होली दिवाली की पूरी कचौरी वो जायज। तो ये साबित करें कि ये इनकी किताब में है या नहीं। अगर है और 100% है, इन्होंने लिखा है अल्लाह चाहता है जब इन दरियाफ्त कर लेता है। किससे दरियाफ्त करता है? इन्होंने लिखा है हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, जबकि हदीस पाक में अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन पर कि नबी के जिस्म को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। कुरान ने साफ फरमाया है, शहीद अदना है कि उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है। तो इन्होंने नबी को मर के मिट्टी में मिलने कहा, नबी की तौहीन की है, नबी के इल्म को जानवरों से तशबीह दी है। आगे आला हज़रत के कोई भी बात वो जब मुनाजरा किसी बिना पर होगा, इस वक्त इन्होंने चैलेंज दिया है, हमने कबूल किया है। मैं इन्हीं की किताब लेकर आया हूं और किताब मुझे जरूरत नहीं है, जितनी किताबों में इनके अकीदे मौजूद हैं वो मैं लेकर, लिहाजा मैं किताब दिखाने के लिए तैयार। इन्होंने साफ लिखा है शैतान का इल्म नबी से ज्यादा, माज़अल्लाह। इन्होंने कुरान लिखा है कि कोई, यहां साफ लिखा उम्मती नबी से अमल में ही मुमताज होता है। रहा अमल इल्म में और अमल रहा तो अमल में उम्मती नबी से बसा औकात बढ़ जाता है, उम्मती बढ़ जाए। ये बराहीन कातिया इनकी रखी, तहज़ुल नास रखी, तहज़ुल नास इनके मौलवी। और इन्होंने साफ लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्दू देवबंद में सीखी। ये किताब मेरे पास रखी है, इनकी ना हो इनकार कर दे, और अगर इनकी है तो देखें। और आपने जो कहा है कि अगर ये हमारी किताब हुई हम तौबा कर लेंगे, आप तौबा कीजिए, मैं दिखाने के लिए आया। एक मिनट टाइम हो रहा है, एक मिनट अभी और है। तो अब अगर आप बिल्कुल सही है, हमने अपना दावा, पूरी बस्ती गवाह है, और जो मुद्दई बुला, अब रहा इनका कहना कि ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ना मेरे दस्तखत है ना इनके दस्तखत है। अगर ना आते तो हार मान दे। ये गांव वालों ने जो तय किया है, गांव वालों के एतबार पे मैं आया हूँ, गांव वाले भी आए हैं। अगर एतमाद